students, today in this chapter I am going to teach you chapter number 8, that is rural livelihoods from civic. As children, as all of you know about that diversity, in first chapter of this book we were discussed about different kinds of diversity in our lives, that is different languages, cultures, religion, food, dresses, etc. Same from these two chapters we were knowing about all the diversity in our way of living. जैसे हमारा way of living है उसमें भी different जो हैं वो things happen होती हैं. So first one is chapter number 8, that is rural, means जो village के people हैं उनका different livelihood कैसा है, उनका way of living कैसा है. ठीक है, what kinds of plants, trees or crops they were grown, है ना, which things is very important to them, what kind of occupation they has been practicing in the village. Now, so first one, there is a description of a Kalpattu village. This village is near to the sea coast, that is in Tamil Nadu. जो तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट स्टेट है इंडिया का, उसमें जो सी कोस्ट है उसके जस्ट नियर ये कलपट्टू विलेज लोकेटेड है. ओके, सो पीपल ऑफ दैट कलपट्टू विलेज हैज़ बीन परफॉर्मिंग different kinds of works. These non-farm work are the work which are not related to the agricultural field. Agricultural field के अलावा जो भी person work करता है, these are all comes under the non-farm work. So they all were doing baskets, making utensils, pots, potter वाला जो work होता है, bricks को make करते हैं, bullock carts, etc. These different kinds of works are considered as non-farm work. And apart from that, there are also some people who were provided you services, different services, that is blacksmith, वही जो iron के products बनाते हैं, these are blacksmiths, nurses, teachers, washermen, weavers, barbers, cycle repair mechanics, and different services provided to the people of that village. So apart from that, there are some shopkeepers and traders, and there is a description of a main street. जो कलपट्टू विलेज की मेन स्ट्रीट है, this street is looking like a bazaar because there are variety of small shop. जैसे वहाँ पे टी शॉप भी थी, ग्रॉसरी शॉप भी थी, बार्बर शॉप, क्लॉथ शॉप, टेलर शॉप, एंड 2 फर्टिलाइज़र एंड सीड शॉप. तो दैट्स ऑल आर जो हैं वो सब एक ही प्लेस पे थी. तो दीज ऑल आर लुकिंग एज अ बाज़ार और अ मार्केट. ठीक है, नाउ देयर आर 4 टी शॉप्स. दीज टी शॉप सेल टिफ़िन्स, जैसे कि उस टिफ़िन्स में क्या क्या होता था, इडली, डोसाई, उपमा इन द morning, and in the evening for snacks there are badai, bunda and Mysore pak in the evening as a part of snack. In beside that near the tea shop there is a corner. ठीक है, उस कॉर्नर पे जो ब्लैक स्मिथ की फैमिली है वो प्रॉपर अपने एक वर्कशॉप चलाती है और दे ऑल आर लिविंग एज इन अ फैमिली. अपार्ट फ्रॉम देयर होम, अपार्ट फ्रॉम द ब्लैक स्मिथ फैमिली और होम, देयर इज़ अ साइकिल हायर रिपेयर शॉप. ठीक है, वो साइकिल मैकेनिक वाला जो वर्क करते हैं वो. सो दीज 2 डिफरेंट फैमिलीज, दैट इज़ ब्लैक स्मिथ फैमिली एंड साइकिल रिपेयरिंग फैमिली, जो है वो अर्न करती हैं डिफरेंट प्रोसेस. एंड जो अदर 2 फैमिलीज़ हैं वो वॉश करती हैं डिफरेंट पर्सन, जो विलेज में अदर पर्सनस हैं उनके क्लॉथ, और उसके थ्रू वो अपनी लिविंग को अर्न करती हैं. कुछ पीपल नियर बाई टाउन में, वहीं कलपट्टू के टाउन में कुछ पीपल ऐसे भी हैं जो कंस्ट्रक्शन का वर्क करते हैं, मीन्स मैसनरी वाला वर्क, और लॉरी ड्राइवर्स भी हैं जो लॉरी एक जगह से दूसरी जगह पे प्लेस पे जो भी आपका लगेज है वो कैरी करती है या ट्रांसपोर्ट करती है. अपार्ट फ्रॉम दैट क्या है कि वो जो विलेज है पूरा कलपट्टू विलेज इज़ ऑल ओवर सराउंडेड बाय लो हिल्स, मीन्स स्मॉल हिल्स से, एंड द मेन क्रॉप ऑफ दैट विलेज इज़ पैडी. Because in the area of Tamil Nadu, that is near to the sea coast, there is a sufficient water and paddy required lots of amount of water. So मेनली जो ज़्यादातर फैमिली की अर्निंग का जो सोर्स है वो है एग्रीकल्चर. दे आर मोस्टली इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर ना. beside that different services or shops, there are some coconut groves around. Coconut, sugarcane and plantain are also grown in that area, that in Kalpattu village. There are also some mango orchards. Now you have to meet some people of that village. First one is Thulasi. Thulasi is a woman. ठीक है, ये एक एग्रीकल्चरल लेबरर है. मेनली इसके पास अपनी कोई भी लैंड नहीं है, बट
ये जो है अपनी लाइवलीहुड वो अर्न करती है वन ऑफ द लैंड ओनर हुज नेम इज़ रामालिंगम, उसकी लैंड पे वर्क करके। रामालिंगम इज हैविंग अ 20 एकर्स ऑफ पैडी फील्ड, ठीक है, वो वहाँ उस कलपट्टू विलेज का लैंड ओनर है, तो ही इज़ हैविंग अ लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ लैंड। ओके, सो वो अपने पेरेंटल विलेज में रहती है। द वर्किंग आवर इज फ्रॉम 8:30 in the morning till 4:30 in the evening. Now the wife of the Ramalingam, whose name is Karuthamma, supervises Thulasi, that when they do the work, और मतलब उसको what kind of work they have to complete it or not. Now this is one of the few times in the year that I find regular work. Means जो एग्रीकल्चरल लेबरर वाला वर्क होता है वो सीजनल वर्क होता है। मीन्स 6 मंथ उनको जब एग्रीकल्चरल फील्ड में कोई वर्क होता है तभी उनके पास जॉब होती है, अदरवाइज दे आर जॉबलेस, उनके पास कोई वर्क नहीं होता। Mainly the work which was done by Thulasi is she have to transplant the paddy, है ना, जब प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं रामालिंगम की फील्ड में, फिर उसको अगेन कॉल किया जाता है वीडिंग करने के लिए, कि जो प्लांट स्मॉल प्लांट्स होते हैं उनको पुल आउट करके अदर प्लेसेस पे जो है वो प्लग इन किया जाता है ना। आफ्टर दैट फिर बीच का टाइम उसके पास फ्री रहता है। आफ्टर दैट वंस अगेन उसको कॉल आती है हार्वेस्टिंग के टाइम पे, वेन एवर देयर इज अ सीजन ऑफ कटिंग द पैडी, देन रामालिंगम कॉल्ड थुलासी। सो ये बहुत डिफ़िकल्ट वर्क है, एग्रीकल्चर फॉर्म वर्क में बहुत ज़्यादा फील्ड में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क चाहिए होता है। सो दिस वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू थुलासी। नाउ एज वो स्टार्टिंग से यंगर एज से ये सारा वर्क जो है वो करती ही जा रही है, बट शी डिस्क्राइब्ड हियर दैट देयर इज़ अ बेंडिंग वर्क। मीन्स उनको पूरा प्रॉपर अपने लेग पे बेंड होके वो जो पुल स्मॉल पैडी के प्लांट्स होते हैं उनको पुल आउट करके दूसरी जगह प्लग इन करना होता है। तो वो बेंडिंग वर्क में उसको बहुत ज़्यादा पेनफुल और प्रॉब्लमेटिक होता है। एंड फॉर दैट हार्ड वर्क थुलासी हैड पेड ₹40 by Ramalingam, only 40 rupees per day. So this is a very less amount in comparison with the work of Thulasi or the hard work of Thulasi. But उसको ये वर्क करना होता है because she is totally dependent on Ramalingam field. After when there is no harvesting, no beating, no cutting, then there is no work for Thulasi, है ना। And now there is a story of Thulasi's husband Raman. So Raman भी है जो वो सेम थुलासी की तरह लेबरर है। They both don't have their own land. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ईयर्स मीन्स जब उसमें फील्ड में रामालिंगम की फील्ड में पेस्टिसाइड्स स्प्रे करने का वर्क होता है तब रमन वो पेस्टिसाइड्स स्प्रे करता है, और जब कोई वर्क नहीं होता तो वो आउटसाइड द फील्ड अपना वर्क जो है वो फाइंड आउट कर लेता है। समटाइम्स जो सैंड रिवर की साइड से और स्टोन क्वेरी करके दूसरी प्लेस पे लेके जा रहे होते हैं उनको लोड करवा लेता है लॉरी और ट्रक में। समटाइम वो ट्रक को जो है यूज़ करता है नियर बाई टाउन्स में, जब वो हाउस कहीं किसी का हाउस वगैरह बन रहा होता है तो मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए, है ना। ये उसका अदर वर्क है लैंड के अलावा, जो वो लैंड पे करता था उसके अपार्ट फ्रॉम द लैंड, दिस इज़ द अदर वर्क, है ना। अब नाउ व्हाट काइंड ऑफ वर्क थुलासी डू अपार्ट फ्रॉम द लैंड वर्क, इट्स दे हैव टू है ना, कि थुलासी को फूड कुक करना होता था फॉर द फैमिली, क्लीनिंग ऑफ द हाउस, वॉशिंग क्लॉथेस, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट थुलासी हैज़ टू गो टू द नियर बाय फॉरेस्ट टू कलेक्ट फायरवुड, क्योंकि फायरवुड को ही वो लोग बर्न करके फूड को प्रिपेयर करते हैं। सो एंड she has to also walk 1 kilometer away from the village to the borewell to get some water for food, for cooking etc. ना इस और इन सारे मटेरियल्स या जो हाउस होल्ड कोरस होते थे उसमें उसका हस्बैंड हेल्प करता था बाय परचेसिंग ग्रॉसरीज फ्रॉम द मार्केट। सो ये उसकी एक थोड़ी सी लिटिल हेल्प हो जाती थी। बट वन डिफ़िकल्टीज इज केम विद सुलादी, देयर इज़ वन एमरजेंसी कि उसकी जो स्कूल गोइंग डॉटर्स थी वो मतलब थोड़ा इन्जॉय कर दी थी, बट लास्ट ईयर क्या होता है वन ऑफ द डॉटर फेल इल, ठीक है, तो उसको प्रॉब्लम हो जाती है, तो हॉस्पिटलाइज्ड का जितना भी पे होता है तो उसके पास इतना मनी नहीं होता। सो शी कैन टेक सम मनी, बोरोड सम मनी फ्रॉम द रामालिंगम। रामालिंगम इज़ अ मनी लैंडर, तो जो मनी लैंडर होते हैं वो स्मॉल फार्मर्स या एग्रीकल्चरल लेबरर्स को मनी प्रोवाइड कराते हैं एट अ रेट ऑफ सम रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% और 7%, और जब मतलब उनके पास मनी हो जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, तो वो रिटर्न कर देते हैं। अब एज यू नो सॉ इन द थुलासीज स्टोरी हाउ पुअर फैमिली इन द रूरल एरियाज आर, कि उनके पास अपनी ओन लैंड नहीं होती, उनको दूसरों की लैंड पे वर्क करना पड़ता है, एंड सीजनल टाइम के लिए ही उनको जॉब होती है, अदरवाइज दे ऑल आर जॉबलेस।
even though they do not earn any money from these activities, they have to do them for the household. मीन्स वो जो 1 किलोमीटर बोरवेल तक जाती थी या जो फायरवुड कलेक्ट करती थी उसके लिए उसको कोई मनी नहीं मिलता था, बल्कि अपार्ट फ्रॉम दैट वो ये अपने हाउस होल्ड वर्क के लिए करती थी ना. बट नियरली इंडिया के सर्वे के अकॉर्डिंग जो 2/5% है रूरल फैमिलीज़ की इंडिया में, वो एग्रीकल्चरल लेबरर्स ही हैं. दे डो नॉट हैव देयर ओन लैंड. सो हमारी कंट्री में इसीलिए ज़्यादातर पावर्टी जो है वो कर रही है. और कुछ फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनका स्मॉल प्लॉट्स हैं, बट उनको कोई ज़्यादा मतलब अर्निंग नहीं है उस प्लॉट से भी. ठीक है. अब नाउ देयर इज़ अ स्टोरी ऑफ सेकर. ठीक है. सेकर इज़ अ मैन हु इज़ हैविंग सम काइंड ऑफ लैंड ऑफ हिज ओन. सो मेनली ये क्या करता है, इसका वर्क क्या है कि ये जो पैडी है अपने हाउस में वो कैरी करता है, हार्वेस्ट करता है अपनी फील्ड को, जो मतलब फील्ड का वर्क होता है एग्रीकल्चरल का वो सब करता है. बट उसके पास ज़्यादा अमाउंट ऑफ लैंड नहीं है, बस 2 एकर्स लैंड है. वो इसीलिए पूरा टाइम उसको मैनेज करने में लगाता है. स्पेशली हार्वेस्टिंग के टाइम पे उसको स्मॉल फार्मर्स की हेल्प लेनी पड़ती है, क्योंकि अकेला पर्सन 2 एकर्स लैंड की हार्वेस्टिंग नहीं कर सकता, तो फिर उसको उनको भी पे करना पड़ता है. आफ्टर दैट जब भी हम को भी एग्रीकल्चरल फील्ड में कुछ ग्रो करते हैं, सो वी नीड सम सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स. सो उस सीड्स और फर्टिलाइजर्स को परचेज करने के लिए सेकर हैज़ टू टेक इन अ लोन फ्रॉम रामालिंगम. और वो लोन पे बैक करने के लिए जो है वो डील करते हैं कि जब उनकी पैडी की फील्ड में पैडी ग्रो होगा तो सम पार्ट ऑफ पैडी ही विल गिव टू द रामालिंगम एज अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट और अ रिटर्न मनी, पे बैक मनी. बट अब नाउ जब हार्वेस्टिंग का टाइम होता है तब सेकर के पास ओनली 60 बैग्स ऑफ पैडी उसकी फील्ड में जो है वो ग्रो होती हैं. कुछ जो है वो लोन को सेटल करने के लिए रामालिंगम को रिटर्न कर देता है, जो रेस्ट ऑफ द उसके पास रहती हैं वो अपने होम में रखता है, और कुछ जो है वो मार्केट में सेल कर देता है. ये लास्ट ओनली 8 मंथ तक उसका ये वर्क जो है वो रहता है. अब उसको कुछ मनी की नीड होती है, तब उसको वर्क करना पड़ता है रामालिंगम की राइस मिल में, जहाँ पे वो पैडी कलेक्ट करता है अदर फार्मर्स की नेबरिंग विलेज से और मार्केट में सेल करता है ना. बिसाइड दैट सेकर इज ऑल्सो हैविंग अ हाइब्रिड काउ, जो कि उसको जिससे कि मिल्क को वो फैच करके मार्केट में सेल करता है, और जो है उससे उसको थोड़ा ये एक्स्ट्रा इनकम जो है वो एवरीडे नीड्स को फुलफिल करने के लिए अवेलेबल होती है. नाउ ऑन बीइंग इन डेप्ट. अब इतना ज़्यादा जब वो लोन लेते हैं किसी भी मनी लेंडर या बैंक से, तो कभी समटाइम्स व्हाट वाज हैपेंड दैट द फार्मर्स विल नॉट एबल टू पे बैक दैट लोन. तब उनको क्या प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ती है. नाउ वी आर डिस्कस दिस एज वी रेड 2 स्टोरीज अबाउट थुलासी एंड सेकर. फर्स्ट स्टोरी ऑफ थुलासी we were discussed that Thulasi had taken loan from Ramalingam for the payment of the hospital. In second case, Sekhar had to take loan from Ramalingam for purchasing seeds and fertilizers. So they both are taking loan, but उनको बोरो करना पड़ता है मनी. बट समटाइम क्या होता है कि सेकर ने क्या कंडीशन रखी थी, दैट ही pay back the loan when the paddy fields has been grown, है ना, paddy had been grown in the field. But sometimes what was happened that जो क्वालिटी होती है सीड की वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, और समटाइम जो इंसेक्ट्स होते हैं द इंसेक्ट्स विल अटैक द क्रॉप. तो जो मेजर क्रॉप फेलर हो जाता है, जिसके थ्रू अब जब क्रॉप नहीं होगी तो फार्मर्स के पास कोई भी चीज़ नहीं होगी अपना लोन रीपे करने के लिए. ठीक है. वो क्या सेल करेंगे कि वो रीपे करें. और समटाइम्स क्या होता है कि जो मानसून होते हैं, रेन जब उनको नीड होती है तब आती नहीं है, और जब उनको नीड नहीं होती है तब जो है वो रेन आ जाती है. दैट्स द अनदर रीज़न दैट द फार्मर्स क्रॉप्स हैज़ बीन रूइंड. सो इसलिए वो जो है वो अनेबल होते हैं अपना लोन पे बैक करने के लिए, और उनकी फैमिली भी फिर ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाती, और बहुत ज़्यादा मनी वो बोरो कर चुकी होती हैं. दिस इज़ द रीज़न दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ नंबर ऑफ सुसाइड्स हैज़ बीन कमिटेड बाय फार्मर्स इन इंडिया. दिस इज़ द मेजर कॉज ऑफ डिस्ट्रेस कि वो कैसे रीपे करें लोन, कैसे अपनी फैमिली को सर्वाइव करें. दैट्स वाई इंडिया इज़ हैविंग द पॉवर्टी एट द हाइएस्ट. नाउ रेस्ट ऑफ द टॉपिक वी विल डिस्कस in next part of this video.